All right, we were discussing the surface energy of liquid surface. जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से मॉलिक्यूल ऊपर लेके जाएंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द नेट डाउनवर्ड फोर्स. तो that work will be stored in the form of surface energy. It is the excess energy possessed by the surface. It is excess energy possessed by molecules of top surface of liquid since some work has to be done to bring the molecules from interior to the top surface, to the surface. ठीक है, अभी करंट पोजीशन में इतना सरफेस एरिया है, it will have some surface energy. If you make the container wide, ये ऐसे हो जाएगा, surface area will increase, more molecules will be on the top surface, so they will have more surface energy and so on. Somebody has to do the work to increase the surface area. So it means molecules on the top surface have some excess energy called surface energy. ठीक है, तो that energy has the tendency, means that surface tension is related to the surface energy. Let's see how it is related. अभी हम लोग surface tension and surface energy का relation derive करने जा रहे हैं. How the both are related to each other. So clear, surface area, I mean surface energy is clear. Top surface के molecules के पास थोड़ी extra energy रहती है because उनको ऊपर लाने के लिए some work करना पड़ता है. So they have some energy, extra energy as compared to the molecules deep inside the liquid. Are you there? Yes, sir. So what is its relation with the surface tension? Both are related to each other because of surface energy, surface tension comes. Let's see how they are related. So next derivation is there between the both. There is the one relation. So we are going to derive that relation. Derivation can be asked. देखो यहाँ पर है surface energy and surface tension. तो दोनों का relation derive करते हैं. ठीक है. As we have seen, there is the extra energy associated with the liquid surface. Okay. To increase the surface, we have to add more energy. और energy उसमें add करनी पड़ेगी. So let's see how do we add it. देखो ये आपने एक वायर फ्रेम लिया और यहाँ पर देखिए ऐसा वायर फ्रेम है. एक मिनट, ये यू शेप का वायर फ्रेम है. देखो ऐसा, ये यहाँ पे एक लिक्विड फिल्म आपने जनरेट की है ना. सोप सोल्यूशन से बना सकते हैं हम लिक्विड फिल्म. ठीक है. एंड थोड़ा सा मैं डायग्राम को अभी डायग्राम क्लियर है. ठीक है. तो और ये मूवेबल रॉड है जिसको हम इधर मूव कर सकते हैं, अंदर भी मूव कर सकते हैं. बोथ वेट कैन मूव, स्लाइड कर सकते हैं इसको. तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा स्लाइड किया आउटवर्ड. इतना सरफेस एरिया बढ़ाया कि नहीं. तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा है ना. तो दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी. एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी उसमें ऐड हो जाएगी. तो एरिया बढ़ाने के लिए इसको बाहर पुल करना पड़ेगा है ना. तो
वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमें निकालना है ना। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जितना वर्क किया, that will be surface energy. Already some surface energy is there, we don't know how much it is, but what we know, we are pulling it by distance d. तो जितना वर्क करेंगे, that much where will it go? It will increase the surface energy of the liquid surface. अभी लिक्विड देखो, ऊपर से एक सरफेस है, पीछे से भी सरफेस विजिबल है आपको, और उन इवन इफ इट इज थिन लेयर, बट अंदर जो है so many molecules will be there inside that much thickness. Liquid film is very thin, but it is of many molecular diameters. बहुत सारे molecules के diameter के बराबर होगी thickness, which we can see it. But inside in that thickness itself, many molecules will be there. तो जब हम बाहर खींचेंगे, कुछ molecules surface पे आ जाएंगे, thickness will decrease. Some molecule will come on the surface, both side, पीछे भी और आगे भी, top surface and bottom surface, दोनों तरफ. Some molecules will come from the inside. Are you getting this point? जब हम इसको खींच रहे हैं, कुछ molecules ये इतना एक्स्ट्रा एरिया बढ़ गया, सामने से भी और पीछे से भी, तो कुछ molecules और सरफेस पे आए, थिकनेस उसकी डिक्रीज हुई होगी, है ना, तो मॉलिक्यूल अंदर से सरफेस पे आ गए, तो वर्क करना पड़ा हमें. तो सिंस सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे. देखो ये लेंथ है, तो फ्रंट साइड से और बैक साइड से टू सरफेसेस, फ्रंट एंड बैक, एक ऊपर की सरफेस है, एक नीचे की सरफेस है, तो देयर आर टू सरफेसेस, देयरफॉर 12. एक लेंथ यहाँ से बढ़ी, एक पीछे से बढ़ी, तो फोर्स इज एस इंटू 12. ये इतना फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स इतना लग रहा है हमें, कितना, एस इंटू 12. उतने ही आपको लगाना पड़ेगा, या उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और इनफाइनाइटली स्मॉल एक्स्ट्रा, और एटलीस्ट उतना लगाएंगे, तो यू कैन जस्ट मैनेज टू पुल इट. So this much force is minimum required to increase its length, to increase this much length d. ठीक है, तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इतना, s इंटू 12. फोर्स की वैल्यू कितनी है, सरफेस टेंशन इंटू 12. ठीक है, एक मिनट इसको ब्लू से लिखने दीजिए. लेट मी राइट विद द ब्लू इंक. फोर्स इज सरफेस टेंशन इंटू 12. ठीक है, और d is the distance, of course, उतना डिस्टेंस हमने इंक्रीज की. तो नाउ सरफेस टेंशन को बाहर निकाल लिया, 12 into d, that is the A, और चेंज इन एरिया, इसको A लिख सकते हैं, डेल्टा A लिख सकते हैं. देखो इधर से थोड़ा एरिया चेंज हुआ, पीछे से, दोनों मिला के ऊपर से कितना चेंज हुआ, L into D. देखो ये D है और L है, ऊपर से L into D और पीछे से भी L into D, तो 2L into D. तो A is the change in the area of the film. ठीक है, तो दिस वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू सरफेस एनर्जी U. इस वर्क डन को हम U लिख सकते हैं, और W भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टिंग इनटू सरफेस एनर्जी, दैट इज U, that is equal to work done we do, extra work done, which is equal to surface tension into area. Surface tension into area. ठीक है, getting or not? USA बन गया, देखो, if you see it becoming USA. Surface energy is equal to USA. U is equal to SA, that is USA. What is A? A is the change in area, which will be final area minus initial area. A will be what? Final area minus initial area. ठीक है, यहां तक ओके है कि नहीं, बोलिए. दिस इज ओके. व्हाट वी हैव डन, फोर्स निकाला हमने, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, उतना फोर्स हमें इधर लगाना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस इंक्रीज किया, d, इतना वर्क किया आपने, एंड दैट वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू द सरफेस एनर्जी, जिसका सिंबल हम U ले सकते हैं. इट इज U इज इक्वल टू SA, USA बन गया, है ना. तो U इज द सरफेस. नाउ हमें सरफेस टेंशन की दूसरी डेफिनेशन मिल गई. देखो ऐसे, देखो A को नीचे भेज दीजिए, U/A हो जाएगा, S इज इक्वल टू U/A. तो सरफेस टेंशन का एक दूसरा
दूसरी यूनिट आ गई, देखो यू की कितनी है, यू इज द एनर्जी और वर्क डन, दैट इज जूल्स। ए द चेंज ऑफ एरिया, ए द चेंज ऑफ एरिया है ना, कभी कभी डेल्टा ए लिखते हैं, डेल्टा इज द प्रॉपर वे टू राइट, बट वी कैन राइट ए आल्सो। तो ए द चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया विल हैव यूनिट मीटर स्क्वायर, तो जूल्स पर मीटर स्क्वायर, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। यहाँ से दूसरा डेफिनेशन आ गया सरफेस टेंशन का। पहला क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, नाउ इट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट चेंज इन एरिया। तो दैट्स हाउ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जीज आर रिलेटेड। अगर आपको सरफेस एनर्जी निकालनी है तो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस फार्मूला एस इंटू ए, यूएसए वाला फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देर आर 3 पैरामीटर्स, surface tension and change in area and u or w. ठीक है, तो 2 will be given, 1 will be asked, है ना? तो because of surface energy, surface tension is there and vice versa, है ना? This derivation they can ask you, derive the relation between surface energy and surface tension. We can also write like this, u is equal to surface tension into change in area, है ना? S into delta A also you can write, because after all A is the change in area, तो ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा है ना? अच्छा, वन मोर पॉइंट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे क्या होता है, हमें थ्रेड से, इसको थ्रेड से खींच के रखना पड़ता है। इफ यू डू द एक्सपेरिमेंट, ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसे वायर फ्रेम ले लीजिए और यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर, और ऐसे इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए ना, तो यहाँ से थ्रेड से बांधिए और यू पुल इट आउटसाइड लाइक दिस। व्हेन यू लीव द थ्रेड, तो ये जो स्लाइडिंग आर्म है, इट विल गो अप टू हियर, इट विल जस्ट मिनिमाइज द एरिया, बिल्कुल इट विल गो एंड टच हियर। इसको खींच के रखना पड़ता है, जितना जितना फोर्स है ना, जितना फोर्स ड्यू टू सरफेस दैट मच फोर्स यू टू अप्लाई। उसको थ्रेड को अगर आप छोड़ देंगे, इट विल जस्ट गो बैक एंड कम वेरी क्लोज टू दिस, सरफेस एरिया विल बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको थ्रेड को, इफ यू डू द एक्सपेरिमेंट, दैट कैन बी डन एट होम आल्सो, है ना? तो इफ यू पुल इट, लेंथ ऑफ द दिस लेंथ विल इंक्रीज टिल इट गेट्स पंक्चर्ड, है ना? और छोड़ देंगे तो इधर आ जाएगी, surface area will be minimized. So that is what is the phenomenon of surface tension. It will tend to decrease the surface area as minimum as possible. यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर दिखेगा आपको। If you allow the movable bar, movable wire to slide, it will go and halt here itself. यहाँ पे चली जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो वन न्यूमेरिकल वी, अच्छा आपका नहीं, ओके, वी हैव टाइम, 6:10 we'll wind up today. Noted, this is noted. इसमें वन ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, एक बिगर ड्रॉप, उसकी छोटी छोटी ड्रॉप ब्रेक करनी, तो हाउ मच वर्क विल बी डन। तो अब बिगर ड्रॉप का सरफेस एरिया निकालिए, दैट विल बी द इनिशियल सरफेस एरिया, और छोटी छोटी ड्रॉप का अलग से सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो टोटल सरफेस, फाइनल सरफेस एरिया विल बी मोर, है ना? तो वर्क डन विल बी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो एरिया निकाल सकते हैं इसमें आप। गॉट इट? तो सरफेस एरिया, अच्छा ये बता दीजिए, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप? सरफेस, यहाँ पे ये डेरिवेशन खत्म हो गया अपना। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ ए स्फीयर कितना होता बोलो?
व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? बोलिए जल्दी से, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? देयर एन Yes, इशू sir. ऑफ साउंड? कितना होता है किसी किसी स्फेरिकल बॉडी का, स्फीयर का, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर और ड्रॉप, राउंड ड्रॉप, कितना होता है सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। तुम लोग फॉर्मूले भी नहीं याद रखते ना। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? आर बीइंग द रेडियस। अगर आपको बोला जाएगा बिगर ड्रॉप को छोटी ड्रॉपलेट में ब्रेक किया, तो हाउ मच विल बी द वर्क डन और हाउ मच विल बी द सरफेस एनर्जी? हाउ मच वर्क डन you do, एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ेगा? हाउ मच इज द इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी? इनिशियली कुछ रहेगी उसकी, तो दिस विल बी द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी जब ब्रेक करेंगे। तो फाइनल एरिया निकालना है, इनिशियल एरिया निकालना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर से आएगा फॉर्मूला चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो लेट्स सी वन क्वेश्चन एटलीस्ट ऑफ सिंपल कैलकुलेशंस। ये तो वैसे ही कैलकुलेशन है, बिगर ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में ब्रेक करना, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, दैट टर्मिनल वेलोसिटी वाला, तो वैसे ही वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, so that you can do it. Now my this question based on this topic is this: find the work done to blow the bubble of radius r if surface tension is s. तो work done का फार्मूला, work done is equal to surface tension into change in area. यूएसए वाला फार्मूला, तो सरफेस टेंशन का सिंबल ऐसे, चेंज इन सरफेस एरिया मींस फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल इज 4 पाई आर स्क्वायर। इनिशियल 0 है, इनिशियल तुम जब बबल बबल ब्लो करते किए, बबल जो ब्लोन द बबल, वो लिक्विड सोपी सोल्यूशन में और रिंग डाल के ब्लो करते कि नहीं करते? इनिशियली इट इज नो बबल, तो जीरो सरफेस एरिया, इनिशियली जीरो रेडियस ले लो उसकी, वेरी स्मॉल रिंग है, जीरो रेडियस, फिर अब ब्लो कर रहे तो बड़ा सा बबल बन गया, इनिशियल 0 है और फाइनल 4 पाई आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर अंदर से और बाहर से भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो थिन बबल है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा। बाहर से भी सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में दोनों तरफ है, लिक्विड फिल्म में एंड लिक्विड स्फीयर में, आई मीन बबल्स में 2 सरफेस एरिया होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंस 2 सरफेसेस, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, तो ये कितना आएगा? 8 इंटू 4 पाई, 8 इंटू पाई 2 इंटू 4, 8 हो जाएगा, 8 पाई एस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो बबल में 2 से मल्टीप्लाई करना, ड्रॉप में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ड्रॉप में ओनली वन साइड टॉप सरफेस होती है, बबल है, लिक्विड बबल है, सोप बबल भी बोलते हैं उसको, वी हैव द सरफेस आउटसाइड आल्सो, सरफेस टॉप सरफेस इनसाइड एक्सपोज टू द एयर। सरफेस कैसे पता लगेगी? एयर के कांटेक्ट में कितना एरिया है, ऊपर भी एयर है, अंदर भी एयर है, यहाँ भी एयर है, तो एक सरफेस ऊपर बनी, अंदर भी एयर है बबल के, एक सरफेस अंदर भी काउंट होगी, तो 2, जैसे फिल्म में अभी हमने लिया, आगे पीछे लिया कि नहीं लिया? आर यू देयर? Yes, sir. तो फिल्म में हमने ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस ली, ऐसे इसमें भी बाहर की सरफेस और अंदर की सरफेस दोनों काउंट करनी पड़ेगी, दोनों एक कांटेक्ट में विद 2 सरफेस एरिया इनटू 2 करना पड़ा हमें। तो कैन यू रिमेम्बर, फॉर द फिल्म एंड फॉर द बबल्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वी हैव द 2 सरफेसेस। नोट कर लो इसको, दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन।
Clear so far? Things are under control? No problem? Why do we multiply it by 2? Because two surfaces in contact with the air, top ऊपर वाली surface and inside surface. So there are two top surfaces, we can say. Between there will be so many molecules inside. The thin film के अंदर भी even thin film is many molecular diameters. बहुत सारे मॉलिक्यूल अंदर रहेंगे अगर आप उसको बबल को ब्लो कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स अंदर से सरफेस पे आएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे. क्लियर? ईशान, आर यू देयर? Yes, sir. आ रहा समझ में? हर्षित, Yes, आर यू sir. देयर? Yes, sir. ऑल राइट, नोटेड. Yes, sir. तो 2 से मल्टीप्लाई करना याद रखिए. और एक मेजरिंग द सरफेस टेंशन, अगर हमें किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन मेजर करना है, देयर इज वन टेक्निक गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक. तो देखो ऐसे आप पहले ये प्लेट है एक्चुअली, ये दिस इज द प्लेट, थिन प्लेट, एंड जिसकी ये वाली एज जो एल है ना. तो we will select such material which will to which the such material of the plate and liquid, so that liquid can stick to the plate like glass and water. Glass में water molecules are or can stick to the glass plate. glass में हम पानी डालते हैं तो some of when you take out the water, some molecules stick there. So they have the force of attraction. Water has property to stick to the glass surface. Mercury doesn't stick to the glass surface. तो ऐसा molecule select कीजिए solid and liquid which has that liquid molecules can stick to that. So they will have because of surface tension they will pull the plate down. ठीक है. तो क्या करेंगे, देखो पहले ये लिक्विड नहीं लगे, इसको प्लेट को थोड़ा बड़ा दिखाती है. जस्ट लेट मी मेक इट सम बिगर. ऐसे प्लेट है, थिन प्लेट. होल्ड ऑन, जस्ट लेट मी चेंज स्लाइडली. एक मिनट, थोड़ा सा और change. Can you see it? Anyway, तो दिस इज द प्लेट. ऐसा इतनी बड़ी प्लेट है, उसको आप बैलेंस से पहले कितना वेट लग रहा है उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए. नाउ ब्रिंग दिस वेसल containing the liquid close to this. इसको एज को टच करना है बस. So what you find, because of the surface tension phenomena, liquid tends to pull the plate down. So you have to put the extra weight to make it horizontal again. So it depends upon, because of the sticking property of the water or liquid to the plate, to the glass plate, it will, because of surface tension phenomena, because of the molecular force, plate will be pulled down due to surface tension phenomena. तो extra weight रखना पड़ेगा. तो how much extra weight you are putting? Formula क्या है? F is equal to S into L. तो अगेन यहाँ पे एक एज है, दिस एज L, और बैक साइड की एज. दो साइड से मॉलिक्यूल उसको नीचे पुल करते हैं, तो L into L है ना. तो SL into SL plus SL दोनों साइड से, तो 2SL है ना. तो what is the extra weight? W is the extra weight being put here, जो हमें फिर से ओरिजिनल.
because surface tension phenomena will start pulling the plate down. तो extra weight कितने रखना पड़ा? That much. W is the extra weight, or which is surface tension into 2L. So surface tension is extra weight divided by 2L. L is the edge of the plate. एक मिनट, just let me write again. Just let me write again. Just a minute. यहाँ से देखिए surface tension will be L is the edge of the plate, है ना? 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया बिकॉज बोथ साइड मॉलिक्यूल विल स्टार्ट पुलिंग इट डाउन. इधर से भी साइड वाला छोड़ दीजिए. थिकनेस इज नेग्लेक्टेड, वो भी नीचे पुल करेंगे उसको, but thickness is neglected. That's how it can be found out. That's all from my side. You have the next class. So you can just leave. Those who has to attend the physical classes have to move immediately.